Hare Krishna. We are very fortunate to have Jagannath Yatra Prabhu from the ISKCON Chowpatty, Mumbai. And we are very welcome Prabhuji to our Hare Krishna Satsang Kendra by three times loudly chanting Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! So I'll just give a short introduction of Prabhuji. Though Prabhuji's introduction is quite long, but Prabhuji has given only short one for all of us. So, Prabhuji's full name is Jagannath Yatra Prabhu. And in 1993, Prabhuji got admitted in Jawahar Navodaya Vidyalaya, JNU, Bhusawal in Maharashtra. So, academically also, Prabhuji is very astounded. He say first rank, Prabhuji secured first rank in 10th standard in JNV, and then second rank in 12th standard science stream in Nasik board. And then Prabhuji completed his BTech in mechanical engineering in VJTI college in Mumbai in 2004. And then Prabhuji also did 8 years of lectureship in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University. That means Prabhuji also worked for almost 8 years. And after that, Prabhuji, since last 12 years, Prabhuji has been fully dedicated in Prabhupada's mission in ISKCON Chowpatty, Mumbai. And Prabhuji is actually, his main service is, he wants to spread the spiritual knowledge and guide students of various schools and colleges in life values and skills. He is traveling all over the country also for that purpose. So Prabhuji has been, he has visited almost 120 JNUs in 12 states across all over India. Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and then Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka, and Kerala, and 3 union territories. He visited in last 2 years. Also, 1,000 plus schools and colleges visited for just to spread life values and skills since last 10 years. So we are very fortunate to have Prabhuji with us, and we welcome. And let us hear from Prabhuji. He has so much cherished experiences traveling all over, and also deep realizations and of his Prabhuji's practice, and also hearing from very great souls in Chowpatty, Mumbai. We are very fortunate to have Prabhuji, and we'll keep inviting Prabhuji to keep coming here to give his more Thank you. association. So I thank our dear Sri Satyamurti Prabhu to give me shelter here. So I thank you also to come here to attend this class. We'll just chant Mangalachanam Prananantara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatinjandasya Jnananjana-shalakaya Chakshuromilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishnapishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Ashatadeshtani. Namo Mahavadanyaya Krishna Premadaye Krishnaya Krishna Chaitanya Namaya Atishe Namaha. Namo Brahmane Devaya Go Brahmanitaya Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Susevi Pranamami Hari Priye.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Once again, I welcome you all to this small session of Bhagavad Gita. We will read from chapter 9, entitled The Most Confidential Knowledge, text number 1 and 2. Text 1. Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान् Idam tu te guhyatamam इदं ते गुह्यतमं Pravakshami anasuyave वक्ष्यामि अनसूयवे Dhyanam Vijnana Sahitam ज्ञानविज्ञानसहितं Yadgyatva Mokshase Ashubhat यद्यवा मोक्षे Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान् उवाच Idam tu te guhyatamam इदं ते गुह्यतमं Pravakshami anasuyave वक्ष्यामि अनसूयवे Dhyanam Vijnana Sahitam ज्ञानविज्ञानसहितं Yadgyatva Mokshase Ashubhat Shri Bhagavan Uvacha श्री भगवान् उवाच Idam tu te guhyatamam इदं ते गुह्यतमं Pravakshami anasuyave प्रवक्ष्यामि अनसूयवे Dhyanam Vijnana Sahitam ज्ञानविज्ञानसहितं Yadgyatva Mokshase Ashubhat. यद्यवा मोक्षे Translation. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. In second one also, Rajvidya Rajaguhyam राजविद्या राजगुह्यं Pavitramidam Uttamam पवित्रमिदम् उत्तमम् Pratykshagamam Dharmyam प्रत्यक्षास्वागमम् Susukham Kartum Avyam सुसुखं कर्तुमव्ययम् Rajvidya Rajaguhyam राजविद्या राजगुह्यं Pavitramidam Uttamam पवित्रमिदम् उत्तमम् Pratykshagamam Dharmyam प्रत्यक्षामगं धर्मम् Susukham Kartum Avyam सुसुखं कर्तुमव्ययम् Rajvidya Rajaguhyam राजविद्या राजगुह्यं Pavitramidam Uttamam पवित्रमिदम् उत्तमम् Pratykshagamam Dharmyam प्रत्यक्षास्वागमं धर्म्यम् Susukham Kartum Avyam. सुसुखं कर्तुमव्ययम् This knowledge is the king of education, the most secret of all the secrets. It is the purest knowledge, and because it gives the direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Hare Krishna. So, हिंदी बोलो क्योंकि अपना भाषा जो है ये इंग्लिश बुक इसलिए इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन हिंदी अपनी भाषा में बोलता हूँ। दिल की बात दिल तक पहुँचती है अपनी भाषा में, और अपनापन आता है। विदेशों की भाषा अपनों के बीच में वो इतना अपनापन नहीं आता है। ये जो भगवद गीता है साक्षात भगवान का वांग्मय रूप है या उपदेश अपने लिए है या लेटर संदेश है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं या भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। और जैसे ना श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो लोग जो बोलते हैं पागल लोग भगवान कहाँ होते हैं, किसने देखा है, तो उनके दुर्भाग्य है कि वो लोग अधम है, पतित है, दुष्ट है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ने
हाँ, इतना सा लीला किया है, इतने लीला किए हैं ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हो। और जैसे हम पढ़ते हैं भगवान ने कहा, ये भगवान नहीं होता तो भगवान ने कैसे कहा? कभी खोलेंगे नहीं किताब भागवत, कभी सुनेंगे नहीं, कभी वो लोग सत्संग आएंगे नहीं, तो कैसे उनके समझ में आएगा कि भगवान है बोल के। और ये लोग इतना बोल देते हैं आत्मा भी कुछ नहीं होता है, आत्मा किसने देखी है, आत्मा कल्पना है। तो ये परिणाम है किसका? जब भगवान को नहीं मानते हैं, खुद को भी नहीं मानते हैं, केवल हड्डी मांस की बॉडी को मानते हैं, जो केवल मायावी है, फंसाने वाला है, जो हमें हमेशा दुख देता है। लेकिन माया का प्रभाव ये होता है जो सबसे ज़्यादा हमें दुख देता है उससे हम सुख का साधन समझते हैं। शरीर सभी जीवों को हमेशा दुख देता है, पनिशमेंट देता है, दंड देता है, यातना देता है। लेकिन लोग समझते हैं शरीर मुझे सुख देगा शरीर सुख का साधन समझते लोग। पूरा जिंदगी जो है शरीर के लिए जीते हैं जो उनको दुख देता है। तो भगवान यहाँ जो कहते हैं इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, कि अर्जुन आप जो है अनसूय है, आप अद्वेषी है, आप ईर्ष्या नहीं करते हैं, जलस नहीं है, एनिवियस नहीं है, आप मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए ये मैं आपको गुह्यतमम, सबसे जो गुह्यतम रहस्यमय ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको बताता हूँ। तो ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान मतलब जीवन के विषय में, आत्मा के विषय में, तो ज्ञान, विज्ञान अनुभव देने वाला है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जिससे क्या होगा, जीवन के जो भी जितने दुख है, जितने समस्याएं हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगा। केवल जॉब लेने से तो समस्या हल नहीं होता है, उल्टा समस्या बढ़ जाता है। क्यों? जो इंडिपेंडेंस था जीवन का वो खो दिया, कुछ पैसे के लिए नौकर बनकर जीवन बिक दिया। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम बिक गए हैं कुछ पैसों के लिए। लेकिन लोग सोचते हैं माया की वश, ये माया का प्रभाव, बने तो हैं गुलाम, नौकर, लेकिन सोचते हैं आई एम द बॉस ऑफ द ऑफिस। तो ये दुर्भाग्य होता है कि हम जो हमें दुख देता है, जो हमें बांध देता है, उसे हम खुशी समझते हैं, या उसे भाग्य समझते हैं, या उसे अपना सक्सेस समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति होता है कि सभी बंधनों से मुक्त होकर मुक्त जीवन जीता है, जो आत्मा का, अपना स्वयं का मूल रूप है। और आगे दूसरे श्लोक को हम बताते हैं, ये जो ज्ञान है राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, किंग है, या सबसे प्रमुख ज्ञान है, अध्यात्म विद्या, जीवन विद्या है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज के समाज में लोग सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन जीवन के विषय में नहीं पढ़ते हैं। मेडिकल साइंस सपोज टू बी लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन दुर्भाग्य देखिए माया का कैसा प्रभाव है कि उस लाइफ बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में कहीं पर भी जिसके वजह से जीवन है, जो जीवन का आधार है, जीव का उल्लेख भी नहीं है। केवल हड्डी मांस की जो गाड़ी बॉडी है उसके पार्ट्स का स्टडी है, उसके सिस्टम्स का स्टडी है, बॉडी सिस्टम्स। लेकिन जीवन का आधार जीव के बिना जीवन नहीं हो सकता, इतना कॉमन सेंस जो है MD MS को भी नहीं होता है। दुर्भाग्य। और ये अपने आप नहीं है, ये उनको पनिशमेंट है। उनकी बुद्धि पूरा रूप से ढक गया है, भगवान माया ने ढक दिया है, कि वो खुद मालिक बनना चाहते हैं, खुद भोगी बनना चाहते हैं, खुद अपना सत्ता बनाना चाहते हैं भगवान की सत्ता छोड़कर। इसलिए माया उनको फिर ऐसा अज्ञानी या मूर्ख बना देती हैं कि वो स्वयं के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। आत्मा तो बड़ी बात है, लेकिन मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, या अपना अहंकार के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। और सोचते हैं मैं बॉडी के विषय में जानता हूँ बहुत कुछ, वो भी उनका अज्ञान है। एलोपैथी जो है, सही मायने में हम देखेंगे
तो शरीर को स्वास्थ्य कम देता है और शरीर को ना कष्ट बहुत देता है, या शरीर का आयु घटाता भी है, शरीर को अनेक रूप से और रोगी बना देता है एलोपैथी। तो मेडिकल साइंस है ही नहीं है एक एंगल से देखी जाए तो, क्योंकि बॉडी के लिए काम करता है, जो टेम्पररी सोल्यूशन होता है और जिसका बेसिस क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। नॉट कि जो मूल कारण है रोग का कि उस पर काम नहीं करता है, केवल जो लक्षण है वो दबा देता है। आपको बुखार लग रहा है, तकलीफ हो रही है, हीट हो रहा है, तो दवा खा लो, बुखार निकल जाएगा। लेकिन किसके वजह से बुखार है वो कोई सोचता नहीं है, इसलिए फिर वो समस्या जो थी वो वैसे ही बना रहता है और समस्या बढ़ते जाता है, सिम्टोमेटिक। और जो इसके विरुद्ध जो है आयुर्वेदिक साइंस, जो रियल मेडिकल साइंस है आयुर्वेद, वो जो मूल कारण है किसी भी समस्या का उस पर काम करता है, रूट लेवल ट्रीटमेंट। और जो एलोपैथी है सिम्टोमेटिक है, लक्षण बस। आपको पेन है, तकलीफ हो रहा है, ये खा लो, पेन महसूस नहीं होगा, है पेन, समस्या है, लेकिन अनुभव नहीं होगा, भूल दिया जाता है, आपको भुला दिया जाता है। हाँ, तो उसको भूल ही बोलते ना, भूल दिया, या क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया, आपको भुला देते बस। तो ये सोचते हैं ये बड़ा विज्ञान है, नहीं, रियल विज्ञान है स्वयं को जानना। ये जो है वही व्यक्ति समझ पाएगा ये विद्या जो खुद को स्वयं को सेवक समझता है कि हम सेवक हैं। जो मालिक बनना चाहेगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो समझ नहीं पाता है कि वास्तविक सुख जो हम चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं, जो जीवन का समाधान चाहते हैं, वो मालिक बनने में नहीं है, वो सेवक में ही है, सेवक बनने में ही है। इसलिए भगवान भी स्वयं जो मालिक है सबके, वो भी हमेशा सेवक बने ही रहते हैं, भक्तों के सेवक बने रहते हैं, सबके सेवक बने रहते हैं। यहाँ तक कि जो जीव उनको नहीं मानता है, उनको छोड़कर, उनका द्वेष करके ये दुनिया में आया है, भगवान उसकी भी सेवा करते हैं परमात्मा बनकर। उसके लिए पूरा भौतिक दुनिया बनाकर उसकी व्यवस्था बनाते हैं कि जो मुझे छोड़ के आया है, घर छोड़ के आया है विदेश, तो उसकी भी व्यवस्था भगवान ही बनाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अपना वास्तविक जो जीवन है वो सेवा के लिए। तो ये राज विद्या है। लोग विद्या के नाम पर केवल अविद्या सीखते हैं, अविद्या। तो ये माया का प्रभाव है कि लोग अविद्या को विद्या समझते हैं और जो विद्या है उसको अविद्या समझते हैं। ये राज विद्या है, राजगुह्यम, सबसे महान गुह्यतम ज्ञान है। सभी रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य ज्ञान है। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्यों? ये गुह्य है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। ये समझने के लिए शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए, भाव शुद्धि चाहिए कि हम सेवक है, ये जीवन सेवा के लिए है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये शब्दों के जो भाव है हमें प्रकट नहीं होंगे। विज्ञान पवित्र है, सभी हमें अपवित्रता से मुक्त कर देते हैं। पवित्र इदम उत्तमम, हमें तमोगुण से ना, तम से उठाता है, उत्तम। ये गीता का ज्ञान कि भगवान स्वयं हमें दिए है, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म। और ये जो अपना धर्म है, जीव का धर्म, मूल धर्म, वो हमें अनुभव देता है। जीव का धर्म जो लोग समझते हैं वो नहीं है। जीव का धर्म आत्मा का धर्म है जो नित्य सनातन है, अविनाशी है। और ये धर्म का पालन जो है सुसुखम है, सुसुखम, यहाँ किंचित भी दुख नहीं होगा, सुसुखम, और संपूर्ण हमें समाधान देने वाला है और अविनाशी है। कभी आपका अस्तित्व के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। दुनिया में सबके लिए हमेशा धोखा होता है,
शरीर के लिए आप जो कमाते हैं उसके लिए भी, जो बनाते हैं, कमाते हैं, जमा करते हैं, वो हमेशा खोने का भय होता है, संभावना होती है, अनिश्चितता होती है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ निश्चित है, कुछ खोने का संभावना है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने ज्ञान अनुभव किया है उसका लक्षण क्या होता है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि उस व्यक्ति को हमेशा प्रसन्नता होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, इस जगत में क्या है? दुखी आत्मा है सब सब दुखी है, कि कोई सुख नहीं है। तो ये रिजल्ट है, परिणाम किसका? भगवान को दुख देने का। अपने आप थोड़ी आया दुखी हुआ है, वो भगवान को दुख दिया है। कैसे दुख दिया भगवान को? मैं आपको नहीं मानता, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं आपको छोड़ के खुद भगवान बनने का प्रयास करूंगा, खुद मालिक बनूंगा, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जैसे यदि बच्चा अब आपको बोले मैं आपको नहीं मानता हूँ, अपना कोई संबंध नहीं है और मैं आपको छोड़ के अभी मैं अपना दुनिया बनाऊंगा, तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो भगवान का क्या करें? जो निस्वार्थ रूप से हमेशा हमें चाहते हैं, प्रेम करते हैं, और भगवान केवल एक ही चीज़ चाहते हैं हमसे कि हम सुखी हो, हम आनंद में हो। भगवान कुछ नहीं चाहते हमसे। भगवान स्वयं में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, आत्माराम है, लेकिन हमसे केवल एक ही अपेक्षा है कि हम सुखी हो। और अपना सुख किसमें है? उनके साथ है। लेकिन हम जब गलत इच्छा किए, क्या गलत इच्छा किए? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे अंति परंतप। 7वें अध्याय में 27वां श्लोक आता है कि हम यदि भगवान के साथ थे, भगवान के अंश है, तो दुनिया में क्यों आए? गलत इच्छा से। गलत इच्छा क्या हुआ? हम तो है तो सेवक, लेकिन मालिक बनना चाहिए। तो मालिक बनना एक गलत इच्छा है, क्योंकि मालिक बनकर किसी को सुख नहीं मिलता। मैं जो बताया, भगवान भी स्वयं मालिक होते हुए भी सेवा करके ही आनंद लेते हैं। क्यों? सेवा एक प्रेम का लक्षण है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा करने का इच्छा होता है। लव मीन्स टू सर्व। आई लव माई कंट्री बोलते ना, आई लव माई कंट्री बोलने की बात थोड़ी है। अपेक्षा होगी कुछ तो किया जाए सेव देश के लिए। तो ये लव मीन्स टू सर्व। और सर्विस क्या होती है? सेवा मतलब सुख दिया जाए, जिसको हम चाहते हैं उसे सुख दिया जाए, वो सेवा है। नहीं मैं उसका बहुत सेवा किया, क्या दिया? उसको 2-3 थप्पड़ लगा के आया, देखा है उसको अच्छा सेवा वो थोड़ी सेवा उसको अच्छा मैं तकलीफ दे के आया। वो सेवा मतलब सुख देना, वो सेवा है। सर्विस मीन्स टू प्लीज, संतुष्ट करना, प्लीज सुख देना। वो सिंपल पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत आवश्यक है समझने के लिए। बहुत लोग हम समझते हैं मैंने बहुत सेवा किया है, किसी को सुख नहीं दिया आपकी सेवा से, किसी को प्रसन्न नहीं किया, तो क्या सेवा किया? टाइम पास किया केवल तो सेवा का मतलब है आपने जिसके लिए सेवा किया उसको सुख दिया। सुख देना आवश्यक है। और क्यों सुख दिया? क्योंकि हमें पता है देने में मिलता है। दूसरों को सुख नहीं देंगे तो हमें कहाँ सुख मिलने वाला है? अपने महाराज जी हमेशा बोलते हैं इन गिविंग वी रिसीव। इस शब्दों में पूरा भक्ति का जो तत्व है, हम सिद्धांत है, समझ सकते हैं। इन गिविंग वी रिसीव। जब भगवान को दुख दिया है, भगवान को छोड़कर, भगवान को न मानते हुए हमें दुख मिला है माया से। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया धरे। चैतन्य महाप्रभु का वचन है कि कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल गया तो क्या किया?
भोगवांछा किया, तो फिर जो माया है बाजू में ही वो पकड़ लिया उसको, वो खुद को उसको ढक दिया कि वो कौन है वो भी भूल गया। भगवान को भूलने में हम खुद को भी भूल जाते हैं। जो जीव बोलता है आत्मा नहीं होता है, मतलब क्या है? वो खुद को भी भूल गया है, खुद के आत्मा का हत्या कर दिया उसने। वही है सुसाइडल। क्या है? मालिक बनना ये सुसाइडल है, आत्महत्या है। ये आत्मा को खो देता है, आत्मा को देख नहीं पाता, केवल हड्डी मांस की गाड़ी के लिए जिंदगी भर कष्ट उठाता है और दुख पाता है। तो थोड़ा 5 मिनट बोलता हूँ कि तो जब भगवान को दुख दिया, उनको छोड़कर, उनको भुलाकर, द्वेष की भावना से, तो हमें दुख मिला है। लोग बोलते हैं कभी, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे दुख क्यों मिला, और मुझे छोड़ के क्यों चले गई, मुझे क्यों भुला दिया उसने। एज अ रिएक्शन कि तूने भी भुला दिया है भगवान को, तुझे भी फिर रिएक्शन तो मिलेगा। तूने भी दिल तोड़ा है किसी का, भगवान का दिल तोड़ा है। तो दुनिया में हमें ये अनुभव आता है कि लोग हमारा दिल तोड़ देते हैं, सभी लोग तोड़ देते हैं। अपनी अपेक्षाएं हमको तोड़ देती है, दिल तोड़ देती है। अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं हमें तोड़ देती है। अपना शरीर भी हमको तोड़ देता है, मतलब अपने सभी स्वप्न को तोड़ देता है शरीर। दुख आते ना, और शरीर का हमेशा खोने का भय होता है, तो हमेशा चिंता भी देता है। तो इसलिए इन गिविंग वी रिसीव। यदि हम भगवान को, भक्तों को, सभी जीवों को सुख देने का केवल विचार भी किए, अभी तक सुख नहीं दिया है, अभी तक सुख दिया नहीं है, केवल विचार किया है कि मैं भक्तों का सेवा करूंगा, उनको सुख दूंगा, वो विचार भी हमें सुख देता है। ये भक्ति की बड़ी महानता है। सेवा कितना हो पाया वो अलग बात है, आगे की बात। लेकिन विचार भी किया, मुझे सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो भक्ति का इतना विशेष महान शक्ति है कि वो हमें कल विचार से भी सुख दे देता है। और दुनिया में आप जान दे दो कि अपना, दुनिया में आप लोगों के लिए जान दे दो खुद का, कोई आपसे संतुष्ट होने वाला नहीं है और आपको सुख मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया का अनुभव है। तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए। और मनुष्य जीवन ये सबसे बड़ा हमें क्या है, मौका है, भगवान की कृपा है ये सब समझने के लिए। यदि मैं कुत्तों को बताऊं, गधों को बताऊं कि बेटा गधा, तू गधा नहीं है, तू एक आत्मा है। गधे का शरीर तेरा गाड़ी है, वो तो फिर ना समझ नहीं पाएगा। कुत्ता बोलेगा भो भो जाओ यहाँ से, मुझे मत बताओ। कुत्ता नहीं समझ पाएगा, मनुष्य समझ पाएगा कि बॉडी क्या है, अपनी गाड़ी। थोड़ा ये 2-3 चीज़ हम समझ जाएंगे ना, अपना जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे इन्होंने पूछा क्या टॉपिक लूँ मैं आपका, तो मैंने कहा मेकिंग लाइफ ब्लिसफुल, सुसुखम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये सुसुखम कैसे होगा, ये जानकर कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हम सेवक हैं। हम ब्रह्मास्त्र में भी नहीं, वहाँ अहंकार कभी कभी आ जाता है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये हूँ। वहाँ कभी कभी मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। ऐसे लोग उसका भी अभिमान बड़ा बन ले देते हैं। मेरे माया का प्रभाव होता है कभी। लेकिन मैं सेवक हूँ, ये जो है सबसे महान साक्षात्कार है, द हाईएस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। आई एम सोल, ये तो शुरुआत है, लेकिन मैं सेवक हूँ ये सबसे बड़ा साक्षात्कार। क्यों? सेवक बनने में ही हमें सब कुछ मिल जाता है, भगवान की अनुभूति भी होती है। ओके, सो थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आधा घंटा हुआ है, किसी का कोई सवाल होगा तो ले सकते हैं, जिनको जाना है तो जा सकते हैं। सवाल है किसी का? ओके, तो